ان خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ آداب عرض ہے، MCN اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں ہوں ذکی صدیقی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ کورونا کی تیسری ممکنہ لہر سے بچوں کو محفوظ رکھنے حکومت و انتظامیہ چوکس۔ بال سنگوپن اسکیم سے مستفید کرنے کے لیے ہر دواخانے میں نمایاں مقام پر لگائے جائیں چائلڈ ہیلپ لائن نمبر 1098 کے بورڈ، ضلع کلکٹر کی ہدایت۔ کھاد کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف شیتکری کامگار پکش نے تحصیل آفس کیج کے سامنے کھاد کی بوریاں نظر آتش کر کے درج کروایا اپنا احتجاج۔ تحصیل انتظامیہ کی معرفت حکومت کو میمورنڈم پیش۔ رکن پارلیمنٹ سید امتیاز جلیل اور MLA پردیپ جیسوال کی رہنمائی میں سٹی چوک اور شہر کے مختلف مقامات کے تاجروں نے کی ضلع کلکٹر سے ملاقات اور ماہ رمضان میں دکانوں کو لگائی گئی سیل کھولنے کی اپیل۔ اور کہ ضلع بیڑ پولیس نے شروع کی شراب کا غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے خلاف خصوصی مہم، 9 ہاتھ بھٹیوں پر مارے چھاپے اور ضائع کیا 94,500 روپے مالیت کی شراب اور ساز و سامان۔ لاتور کرائم برانچ پولیس نے بھی ضبط کی 12,78,000 روپے مالیت کی غیر قانونی شراب، کیس درج، تحقیقات جاری۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے حکم دیا ہے کہ چائلڈ ہیلپ لائن 1098 اس طرح کا بورڈ سبھی دواخانوں میں ضلعی مقامات پر آویزاں کیا جائے۔ ضلع بھر کووڈ-19 کے مرض سے والدین میں دونوں یا ان میں سے کوئی ایک کمانے والا سرپرست خانہ اگر فوت ہو چکا ہے تو ایسے سرپرست و والدین گنوا چکے یتیم و بے سہارا بچوں کو پرورش اطفال یعنی بال سنگوپن اسکیم سے مستفید کرنے کے لیے ٹاسک فورس قائم کی گئی ہے اور ایسے بچوں کی امداد و راحت کے لیے چائلڈ ہیلپ لائن نمبر 1098 پر رابطہ کر کے ضرورت مند اس اسکیم سے فائدہ اٹھائیں۔ اس طرح کی اپیل کرتے ہوئے ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے اس اسکیم و منصوبے کی تمام تر جانکاریوں کے معلوماتی بورڈ تمام اسپتالوں میں نمایاں مقامات پر لگانے کے احکام متعلقہ شعبوں کے ذمہ داران کو دیے ہیں۔ کلکٹر موصوف نے کووڈ-19 کے ضمن میں متاثرہ بچوں کی نگہداشت و پرورش سے متعلق قائم ٹاسک فورس سمیتی کے اپنے دفتر پر منعقدہ اجلاس کے موقع پر یہ احکام صادر کیے ہیں۔ اسی طرح میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے ایک پریس نوٹ جاری کیا ہے جس کے مطابق کورونا کی دوسری لہر پر قابو پانے کے بعد اب تیسری لہر آنے کا امکان ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس لہر میں بچے اس مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لہٰذا بچوں کو اس وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے AMC انتظامیہ نے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور انہیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ تیسری لہر روکنے میں بھی AMC انتظامیہ کامیاب ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوامی نمائندوں اور شہریان کے بھرپور تعاون کے سبب انتظامیہ پہلی اور دوسری لہر پر قابو پانے میں کامیاب ہو پایا ہے۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر کے مطابق اس مرض سے شفا پانے کے بعد بھی اس کے منفی اثرات بچوں پر رہ سکتے ہیں اور دیر تا 2 ماہ انہیں تکلیف ہو سکتی ہے، مگر شہریان کو خوفزدہ ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ انتظامیہ اس وبا پر قابو پانے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، مگر اس کے لیے سرپرست بھی چوکنا رہیں اور احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ AMC انتظامیہ اس آفت کا مقابلہ کرنے پوری طرح سے تیار ہو چکا ہے اور MGM کے اسپورٹس کمپلیکس میں خاص بچوں کے لیے 100 پلنگ والا کووڈ کیئر سینٹر شروع کیا جا رہا ہے۔ خودکشی کے مہلوک کسانوں کے ورثاء و اہل خانہ کو فوری راحت و امداد دی جائے، اس طرح کے احکام گزشتہ روز ضلع کلکٹر آفس میں منعقد ابھاری منصوبے کے اجلاس میں ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے متعلقہ ذمہ داران کو دیے۔ ناظرین، ریاست کے کسان قرض
پیداوار میں کمی، فصلوں کے نقصان اور دیگر کئی ایک مسائل سے اتنے دل برداشتہ اور پریشان حال ہیں کہ ماضی قریب میں بڑی تعداد میں کسانوں نے خودکشی کر لی اور زندگی کی پریشان حالیوں سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلا لیا، لیکن ان کسانوں کے ورثاء و اہل خانہ ہنوز بے یار و مددگار اور تنگی و اسرت کی زندگیاں جینے پر مجبور ہیں۔ ایسے ہی کسانوں کے خاندانوں اور مہلوکین کے ورثاء کو دلاسا و امداد دلانے کے لیے حکومت نے ابھاری کے عنوان سے ایک منصوبہ شروع کیا۔ گزشتہ روز اسی ابھاری منصوبے کے تحت ضلع کلکٹر دفتر پر منعقد اجلاس میں من جملہ 27 معاملات پر ضلعی سطحی سمیتی میں تبادلہ خیال کر کے منظورہ معاملات میں متعلقہ متاثر خاندانوں کو فوری امداد فراہم کرنے کے ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے احکام صادر کیے ہیں۔ اس اجلاس میں متعلقہ تمام افسران و ملازمین نے شرکت کی۔ کیمیائی کھاد اور ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کی مذمت کرتے ہوئے شیتکری کامگار پکش کی جانب سے کیج کے دفتر تحصیل کے سامنے کھاد کی بوریوں کی ہولی جلا کر اپنے غصے اور ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ ملک میں ڈیزل، پیٹرول اور گھریلو پکوان گیس کی مہنگائی یوں تو پہلے ہی آسمان چیرتی دکھائی دے رہی ہے۔ اسی بیچ جبکہ کسان پہلے ہی مختلف آفات سماوی اور زمینی آزمائشوں میں گرفتار ہیں اور ان کی زندگیاں تنگ ہیں، ایسے حالات میں حکومت بجائے اس کے کہ کسانوں کے زخموں پر مرہم رکھتی، مرکزی حکومت نے کسانوں پر ایک اور ضرب لگاتے ہوئے اپنے کسان مخالف ہونے کا ثبوت دے دیا ہے۔ اس طرح کے غضبناک خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کیج میں شیتکری کامگار پکش کے عہدیداران و کارکنان نے دفتر تحصیل پر کھاد کی بوریوں کی ہولی جلائی اور اپنے احتجاج کا اندراج کروایا۔ اس موقع پر کھاد کی قیمتوں میں کیے گئے اضافے کو واپس لینے اور کسانوں کے متعدد مسائل کے حل کا مطالبہ کیا گیا اور مزید شدید احتجاج کا انتباہ حکومت کو دیا گیا۔ اس احتجاج میں بھائی موہن گنڈ، اشوک روڑے، منگیش دیشموکھ، جی ڈی اپا، راج تاپسے اور دیگر عہدیداران و کارکنان موجود تھے۔ لاک ڈاؤن کے دوران ماہ رمضان میں سٹی چوک اور شہر کے دیگر مارکیٹس میں کئی دکانوں کو سیل لگا دی گئی تھی۔ ایم پی امتیاز جلیل اور رکن اسمبلی پردیپ جیسوال نے دکانداروں کے ساتھ ضلع کلکٹر سے نمائندگی کی اور دکانوں کے سیل کھلوانے کی درخواست کی ہے۔ عیاں رہے کہ وبائی حالات کے سبب لگائے گئے لاک ڈاؤن کے دوران شہر کے سٹی چوک اور دیگر کئی بازاروں میں دکانداروں کی جانب سے قوانین کی خلاف ورزی کے سبب شہر و ضلع انتظامیہ نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کئی دکانوں کو ماہ رمضان کے دوران سیل کر دیا تھا۔ اب جبکہ عید الفطر بھی گزر چکی ہے تو ان دکانداروں نے رکن پارلیمان سید امتیاز جلیل اور رکن اسمبلی پردیپ جیسوال سے نمائندگی کی تو ان دونوں عوامی نمائندوں نے متعلقہ بیپاریوں اور دکانداروں کے ساتھ ضلع کلکٹر سے درخواست کی کہ ان دکانوں کی سیل کھلوا دی جائیں تاکہ یہ لوگ پابندی کے اوقات کو چھوڑ کر دیگر منظورہ اوقات میں اپنے کاروبار شروع کر کے اپنی روزی روٹی کا کسی حد تک نظم کر سکیں۔ ضلع کلکٹر نے اس درخواست پر ہمدردانہ غور کر کے جلد ہی کوئی مناسب فیصلہ لینے کا انہیں تیقن دلوایا ہے۔ دیکھیں، کچھ دن پہلے جب رمضان کی شاپنگ چل رہی تھی اس دوران کچھ پرتیبندھ لگائے گئے تھے، لیکن یہ پایا گیا تھا کہ کچھ دکاندار جو ہے اس کا النگھن کر رہے تھے اور اسی کے تحت ضلعادھیکاری اور دوسرے جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے انہوں نے جا کے تو ایکشن لیا اور کئی دکانوں کو اس وقت سیل کر دیا تھا۔ یہ کا اتنا پیریڈ کے اندر پوری دکانیں بند رہی، سیل رہی، لیکن آخری کب تک رہے گی؟ تو دکانداروں کی طرف سے ہمیں یہ ونتی کی گئی تھی۔ تو آج کے دن میں اور ہمارے پردیپ جیسوال صاحب ہم دونوں مل کے جتنے بھی دکانداروں کے پرتیندھی ہیں ان کے ساتھ کلکٹر صاحب کے پاس آئے اور ہم نے کلکٹر صاحب سے یہی ونتی کی ہے کہ ان کو جتنی سزا ملنی چاہیے تھی وہ سزا مل چکی ہے، تقریباً 10-12 دن ہو گئے ہیں، اب ان کا بھی پیٹ بھرنے کا سوال ہے۔ تو کلکٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ سہانبھوتی پوروک اس کے اوپر غور کریں گے اور کل اس کے تعلق سے کچھ نہ کچھ ایک پازیٹیو فیصلہ لیں گے کر کے یہ انہوں نے ہم کو آشواسن دیا ہے۔ ठिकाणी उपस्थित या जिल्ह्याचे खासदार श्री इम्तियाजभाई, त्याचबरोबर आलेले सर्व व्यापारी वर्ग, ईदमध्ये जवळपास काही दुकानं लॉकडाऊन असतानासुद्धा उघड्या झाल्यामुळं त्या ठिकाणी सील करण्यात आले होते। आज आमच्या सर्व व्यापाऱ्यांनी आम्हाला आणि खासदार साहेबांना विनंती केली की आपण कलेक्टर साहेबांना जरा 12-13 दिवस झाले, आता ईदसुद्धा संपलेली आहे, मी व्यापाऱ्यांना विनंती करेल त्याने त्याचं
खासदार साहेबांनी सांगितलं की बरोबर कलेक्टर साहेबांनी म्हणले बरोबर 1-2 दिवसामध्ये आम्ही त्याच्यावर विचार करू, जे आम्हाला हे करता येईल ते आम्ही व्यापाऱ्यांना बरोबर करू. आम्ही व्यापाऱ्यांनासुद्धा विनंती करेल की सध्या थोडं लॉकडाऊन आहे, त्या हिशोबाने आपण सुद्धा बंदचं पालन करावं अशी विनंती करतो. आणि लवकरात लवकर खासदार साहेब आम्ही भेटल्यामुळे लवकरात लवकर असं नाही की आपण 12-13 दिवस झाले तर आपला चांगला निर्णय आपल्या बाबतीत कलेक्टर साहेब घेतील, एवढंच यापासून मी सांगतो. सर्वांनी आपलं सोशल डिस्टन्सिंग, अपना मास्क वापरने. अपनी समाजी व अवामी खदमात के एहसास जिम्मेदारी के तहत जिंतूर सेलू हल्के की रुकन असम्बली मेघना बोर्डीकर ने जिंतूर देही अस्पताल को एक जदीद तर्ज की एम्बुलेंस का अतिया किया, जिसका इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज़ किया गया. ताल्लुका जिंतूर में कोरोना के फैलाव की सूरत हाल में सेहत इंतज़ामिया पर इजाफी बोझ पड़ा है और कोरोना मुतासरा और दीगर अमराज के शिकार मरीजों को बर वक्त एम्बुलेंस फराहमी नहीं हो पा रही है. इस सूरत हाल के तनाजुर में हल्के की रुकन असम्बली मेघना बोर्डीकर ने अपनी समाजी जिम्मेदारी और इस जिम्मेदारी के एहसास के तहत गुज़िश्ता रोज़ जिंतूर के देही अस्पताल को एक जदीद आलात व ऑक्सीजन और वेंटिलेटर से आरास्ता एम्बुलेंस का अतिया किया है. में साबिक सदर बल्दिया और बल्दिया के गट नेता सचिन गोरे के हाथों इस एम्बुलेंस का इफ्तिताह करते हुए उसे आवाम से मंसूब किया गया. इस मौके पर डॉक्टर रवि किरण चांडगे, डॉक्टर दिनेश बोरालकर, डॉक्टर विनोद राठौड़ के अलावा एडवोकेट गोपाल रोकड़े, रुकन बल्दिया अब्दुल रहमान, डॉक्टर पंडित दराड़े, दत्ता भाऊ कटारे, सुमेध सूर्यवंशी, गणेश दराड़े, अमोल देशमुख, रोहित देशपांडे, अब्दुल मुकीत, युवराज घनसावद और नितिन वानी वो दीगर कारकुनान मौजूद थे. नाजरीन, गो के औरंगाबाद ज़िले में गुज़िश्ता कुछ दिन से कोरोना मुतासरीन की तादाद में कमी आई है, मगर ख़तरा हुनूस बरकरार है. इसके बावजूद भी बेशतर शहरियान एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने तैयार नहीं हैं, जिसके सबब ऐसे लोगों की सोच पर सवालिया निशान लगते दिखाई दे रहे हैं. फरवरी के महीने से अचानक औरंगाबाद ज़िले में कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा होने लगा था और एक वक्त ऐसा भी आया जब मुतासरीन का हिंदसा 2000 तक पहुंच गया. गो के इंतज़ामिया इसको कोरोना की दूसरी लहर से मामूर कर रहा है. लिहाजा इस वबा पर काबू पाने के लिए एक बार फिर से शहर में दफ़ा 144 और कर्फ्यू नाफिज है. ज़रूरी अशिया की ख़रीदी के लिए सुबह 7 तक 11 का वक्त दिया गया है. इंतज़ामिया की जानिब से दी गई इस छूट का शहरियान गलत फ़ायदा उठाते दिखाई दे रहे हैं. आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो मुकुंदवाड़ी भाजी मंडी की हैं, जहां ख़रीदारों की भीड़ है. उनके दरमियान जिस्मानी दूरी भी नहीं है और उनमें कई अफराद मास्क के बगैर बाज़ार में घूमकर इस वबा को गोया दावत देते दिखाई दे रहे हैं. 11 बजे जब पुलिस मुलाजमीन वहां पहुंचे तो दुकानदारों ने वक्ती तौर पर अपनी दुकानें समेट लीं, मगर जैसे ही पुलिस का राउंड ख़त्म हुआ दोबारा से बाज़ार सज गया. यही हाल शहर के दीगर इलाकों का भी है. मुख्तलिफ बहाने बनाकर कई शहरियान बाज़ारों में घूमते दिखाई दे रहे हैं. ऐसा लगता है कि उन्हें इस वबा का कोई खौफ ही नहीं है और वो दफ़ा 144 और कर्फ्यू नाफिज होने के बावजूद शहर में घूमना अपनी शान समझने लगे हैं, जिसकी वजह से ऐसे शहरियान की इस तरह की सोच पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है. आखिर वो ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि उनकी ये लापरवाही खुद उनके लिए और उनके अफराद ख़ानदान के लिए निहायत नुकसानदेह साबित हो सकती है. SIO औरंगाबाद और अल्फाज कम्युनिटी के इश्तराक से कोरोना की मुमकिना तीसरी लहर से मुताल्लिक़ अवामी बेदारी की गर्ज से खुसूसी मुहिम का आज से आगाज़ अमल में आया. ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई. तलबा और नौजवानों की तंजीम स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और अल्फाज कम्युनिटी के ज़िम्मेदारान ने सहाफ़ियों को बताया कि इस वक्त सारी दुनिया कोरोना से परेशान है. हमारे मुल्क में भी हालात नहायत बदतरीन हो चुके हैं. मुतासरीन की अमवात में भी बेपनाह इजाफ़ा हुआ है. इसकी वजूहात में से अहम वजह आवाम का गैर ज़िम्मेदाराना रवैया और हुकूमत की बेहिसी के सबब आज दवाखानों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और लोग ऑक्सीजन बेड व वेंटिलेटर्स के लिए परेशान हैं. गुज़िश्ता एक माह से इस मर्ज़ से मुतासरा मरीज़ों को वक्त पर तिब्बी मदद मिल सके इस गर्ज से SIO और अल्फाज कम्युनिटी के इश्तराक से ज़िलाई सतह पर कंट्रोल सेल कायम किया गया है और अब कोरोना की तीसरी मुमकिना लहर का मुकाबला करने और इस वबा से बचने के लिए आवामी बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, जिसका आगाज़ आज अमल में आया. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैयद तनवीर, शेख हसन, प्रीतम कुमार और भूमिका भी मौजूद थे. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. खैरुन्नास मन यन्फुन्नास, तो में बेहतरीन वो है जो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हो.
असल में हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 महीनों से जो कोरोना वायरस की ऑल इंडिया पे जो आउटब्रेक हुआ है बहुत ज़्यादा सूरत हाल गंभीर रही, तो SIO ने स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने ये नेशनल लेवल पे ये फैसला किया कि हमारा जो नेटवर्क ऑल इंडिया में फैला हुआ है उसको यूटिलाइज करते हुए हम एक ऐसे कोविड रिलीफ टास्क फोर्स का क़याम किया। ये कोविड रिलीफ टास्क फोर्स हर स्टेट में इसका कंट्रोल रूम है और अलग अलग अपने लेवल पे ये काम कर रहे हैं। इसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा जो चीज़ कि हम प्रोवाइड करें, 4 रिसोर्सेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं और पेशेंट्स को उन प्रोवाइड करें, मतलब रिसोर्स पेशेंट्स को उन रिसोर्सेज से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले जो था आपका जो बेड्स है, O2 बेड्स है, वेंटिलेटर बेड्स है कि हॉस्पिटल्स में जो अवेलेबल हैं उनसे पेशेंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। दूसरा है आपके जितने मेडिसिन्स है, ड्रग्स हैं, इंजेक्शंस है, तो उनकी अवेलेबिलिटी कहाँ पर है चेक करके उनको उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। और लास्ट अभी 2 दिन पहले तक जो प्लाज्मा का तो अभी आया, लेकिन प्लाज्मा की जो थे तो डोनर्स को पेशेंट से कनेक्ट कर रहे थे। ऐसी और टिफ़िन सर्विसेज है और दूसरी सर्विसेज हम उनको रिसोर्सेज से कनेक्ट कर रहे थे। तो 29 अप्रैल को हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमारा जो कोविड रिलीफ टास्क फोर्स है उसका क़याम अमल में आया, जिसके अंदर हमारे 30+ से ज़्यादा वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं और अभी तक हमने 300+ पेशेंट्स को उनकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल की है। कचरे से रोजगार हासिल करके एक बुजुर्ग ने नौजवानों को पैगाम दिया है कि बेरोजगारी पर इस तरह भी काबू पाया जा सकता है। नाजरीन, अक्सर नौजवानों को ये शिकायत रहती है कि उन्हें नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं और कारोबार करने के लिए उनके पास रुपया नहीं है, मगर इन बुजुर्ग को देखिए जो अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा गुजार चुके हैं, मगर ज़ईफ़ुल उम्री में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि कचरे में फेंके गए नारियल के दरख्त की सूखी टहनियों को तराश कर उनसे झाड़ू बनाकर रोजी रोटी कमा रहे हैं। 7 हिल से सेंट्रल नाका जाने वाली सड़क पर MGM स्टेडियम के सामने एक बंगला है जिसमें नारियल के दरख्त हैं और मकान मालिक दरख्त के झड़ने वाले सूखे पत्ते अपने मकान के सामने ही कचरे में फेंक देते हैं। ये बुज़ुर्ग कचरे में फेंके गए नारियल के इन सूखे पत्तों से झाड़ू बनाकर फ़रोख्त कर रहे हैं, जो 40 से 50 रुपये में फ़ी झाड़ू फ़रोख्त होती है। इस तरह से वो इस कचरे से रोज़गार हासिल करते हुए नौजवानों के लिए एक सबक देते हैं कि अगर इंसान मेहनत करे तो वो कभी भूखा नहीं रहता। बड़े पत्तों से यौमिया 4 ता 5 झाड़ू बनाकर 100 ता 250 रुपये वो बुज़ुर्ग कमा लेते हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने ब्रेक द चेन के तहत कई सख्त पाबंदियां आयद कर रखी हैं, जिसके सबब ट्रेन से सफ़र करने वाले मुसाफिरों की तादाद भी घट गई, जिसके बाद अब रेल इंतज़ामिया ने नंदीग्राम एक्सप्रेस गाड़ी भी मनसूख कर दी है और जो 11 रूट्स पर गाड़ियां चलाई जा रही हैं उनमें से भी मज़ीद कुछ रूट्स की फेरियां मनसूख किए जाने के इम्कान हैं। वाज़ेह रहे कि ब्रेक द चेन के तहत नाफिज की गई सख्त पाबंदियों से कबल औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से कई रेलगाड़ियाँ गुजर रही थीं, जिसकी वजह से रेलवे मुसाफिरीन की तादाद में इजाफ़ा हुआ था, मगर कोरोना से मुतासरा मरीज़ों की तादाद में बेतहाशा इजाफे को देखते हुए रियासती हुकूमत ने सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी हैं और लॉकडाउन नाफिज किया है, जिसकी वजह से चेन्नई नगरसोल, साई नगर शिरडी, काकीनाडा, विजयवाड़ा और दीगर कई रेलगाड़ियाँ मनसूख कर दी गई हैं। इसी तरह मुंबई जाने वाली मुसाफिरों की तादाद भी कम हो जाने के सबब जालना औरंगाबाद CSTM जन शताब्दी एक्सप्रेस भी रद्द कर दी गई है। फ़िलहाल औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से मुख्तलिफ रूट्स पर 11 गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं, जिनमें मुंबई के लिए राजा रानी एक्सप्रेस, तपोवन एक्सप्रेस, देवगिरी एक्सप्रेस, ये 3 गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं। इसी तरह हैदराबाद के लिए अजंता एक्सप्रेस, औरंगाबाद हैदराबाद एक्सप्रेस, हैदराबाद जयपुर एक्सप्रेस जो हफ्ते में 1 दिन चलाई जाती है, ये गाड़ियाँ शेड्यूल के मुताबिक चलाई जा रही हैं। इसके अलावा दिल्ली के लिए सचखंड एक्सप्रेस के साथ हफ्ते में 1 दिन चलाई जाने वाली मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस भी चलाई जा रही है। इनसे हटकर पूना और धर्माबाद मराठवाड़ा एक्सप्रेस भी शेड्यूल के मुताबिक चल रही है। इन 11 रूट्स पर चलाई जाने वाली बेशतर गाड़ियों की फेरियां मनसूख किए जाने के इम्कान हैं, जबकि मुसाफिर न मिलने के सबब रेलवे इंतज़ामिया ने फ़िलहाल मुंबई नागपुर नंदीग्राम एक्सप्रेस की फेरियां मनसूख करने का फैसला कर लिया है। मुख्तलिफ आजहानी रहनुमाओं के यौम पैदाइश की मुनासिबत से शिवसेना ख़वातीन इकाई की जानिब से टीवी सेंटर इलाके में शजरकारी की गई और शहरियान को अपने अतराफ़ का माहौल साफ़ सुथरा रखने का नेक पैगाम दिया गया।
वाज़ेह है कि धर्मवीर संभाजी महाराज, भगवान परशुराम और महात्मा बसवेश्वर महाराज की जयंती की मुनासिबत से टीवी सेंटर इलाके में ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाए गए। इलाके में एमएलसी अंबादास दानवे के हाथों शजरकारी की गई। इस मौके पर शिवसेना के शहर प्रमुख बाला साहब पाटिल थोरात, पार्टी के नायब जिला सदर अनिल पोलकर, विधानसभा संगठक राजू वैद्य, म्यूनसिपल स्टैंडिंग कमेटी के साबिक चेयरमैन मोहन मेघावाले और दीगर पार्टी वर्कर्स व अहदेदारान ने इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर शिवसेना पार्टी के उप विभाग संगठक रमेश अधाते, शाखा प्रमुख ज्ञानेश्वर पाटिल शेड़के, शाखा संगठक नंदकिशोर कोलते, सरिता मनोहर दिनकर भी मौजूद थे। ये प्रोग्राम संगीता कृष्णा बोरसे ने ऑर्गेनाइज किया था। अब रियासत के किसी भी कोने से 112 नंबर डायल करके फौरी पुलिस की मदद हासिल की जा सकेगी, जिसके लिए हर ज़िला व शहर के पुलिस हेडक्वार्टर पर अब रियासती सतह का कंट्रोल शोबा भी जल्द ही कायम होगा। हंगामी तिब्बी खिदमात के लिए रियासत में जिस तरह 108 नंबर पर फ़ोन करके फौरी एम्बुलेंस की मदद ली जा सकती है और एम्बुलेंस में मौजूद डॉक्टर की मौजूदगी में मरीज व हादसे के शिकार जख्मियों को फौरी अस्पताल पहुंचाया जाता है। इस स्कीम की कामयाबी से हमकिनार होने के बाद अब रियासती हुकूमत ने शहरियान को फौरी पुलिस की मदद हासिल हो सके, इस मकसद के तहत डायल 112 का मंसूबा हाथ में लिया है। इस मंसूबे का रियासती दफ्तर जिला थाना में होगा और वहीं रियासती सतह का पुलिस कंट्रोल शोबा भी कायम होगा। इस कंट्रोल रूम से रियासत भर के तमाम पुलिस कमिश्नरेट, पुलिस सुपरिंटेंडेंट दफातर समेत तमाम पुलिस स्टेशन और पुलिस की गाड़ियां जीपीएस मैकेनिज्म के तहत जोड़ दिए जाने का काम तेजी से जारी है। डायल 112 के मंसूबे पर अमल आवरी के लिए पुलिस कमिश्नरेट में 12 बोलेरो जीप गाड़ियां खरीदी गई हैं। राब्ता वजीर सुभाष देसाई के हाथों और जिला कलेक्टर सुनील चौहान, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता की मौजूदगी में गुज़िश्ता पीर को इन गाड़ियों का इफ्तिताह करके उन्हें आवाम से मंसूब किया गया। कैच जिला भीड़ के पुलिस स्टेशन अमले ने शहर में जारी हाथ बट्टी शराब कशीद अड्डों और शराब फरोख्तगी के अड्डों पर छापे मारकर सैकड़ों लीटर शराब और सामान शराब साजी तबाह कर दिया। तफसीलात के मुताबिक केज पुलिस थाना के इंस्पेक्टर प्रदीप त्रिभुवन और सब इंस्पेक्टर संतोष मिसाल ने अपने माविनीन के अमले के साथ केज शहर में हाथ भट्टी शराब कशीद करने के अड्डों और हाथ भट्टी शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रखी है। इसी मुहिम के तहत शहर में मेन रोड, भवानी माल और क्रांति नगर इलाकों में जारी शराब अड्डों पर शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ रास्त छापामारी की गई और यहाँ मौजूद सैकड़ों लीटर तैयार शराब और शराब बनाने के साजो सामान और खाम माल तल्फ कर दिए गए। इस जब्त शुदा शराब और दीगर सामान की जुमला मालियत 94,500 रुपये बतलाई गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से गैर कानूनी शराब कारोबारियों में खलबली मची हुई है, जबकि पुलिस ने ऐसी कार्रवाइयां जारी ही रहने की बात बतलाई है। जिला लातूर के देवनी नामी मकाम पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच पुलिस ने 12,78,000 रुपये मालियत की गैर कानूनी शराब जब्त कर ली। जिला लातूर की लोकल क्राइम ब्रांच को मिली खुफिया इत्तला पर जराइम शाख अफसरान ने देवनी नामी देहात के बोदवड़ चौक में पिकअप वैन MH24 AU 5156 को रोक कर उसकी तलाशी ली तो उसमें से देसी दारू के 194 बॉक्स और 174 बोतलें पाई गईं, जिस पर गैर कानूनी तरीके से शराब की मालबर्दारी करने वाले नागनाथ गंगाधर बिराजदार सागर मोरखड़े के खिलाफ देवनी पुलिस स्टेशन में दफ़ा 188, 269 IPC की कलम 81, 83 EA 65, महाराष्ट्र दारूबंदी कानून की दफ़ा 51, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, कोविड-19 कानून 2020 की दफ़ा 11 और वबाई अमराज रोकथाम एक्ट 1997 की दफ़ा 235 के तहत केस दर्ज किया गया। ये कार्रवाई लोकल क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर गजानन भात लवंडे की रहनुमाई में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर बहुरे संजय भोंसले, पुलिस अमलदार रवि गोंदकर, बालाजी जाधव, यशपाल कामले, नाना भवंग, सचिन धारेकर, बंटी गायकवाड़, अनिल सोन कामले, भीष्मनंद साखरे और प्रदीप चोपने ने अंजाम दी। इस मामले की जांच देवनी पुलिस स्टेशन के पुलिस अमलदार कामले कर रहे हैं। शहर के हनुमान नगर इलाके में आए दिन चोरी की वारदात में इजाफा ही हुआ जा रहा है, जिसके सबब इलाके के साकिनान में खौफ व हिरास का माहौल है और
وہ पुलिस महकमे से इस जानिब फौरी तवज्जो की गुहार लगा रहे हैं। नाजरीन, 4 दिन कबल ही हनुमान नगर इलाके में एक रिहायशी मकान में चोरी की वारदात अंजाम दी गई थी, जिसमें महवे ख्वाब खातून के गले से सोने की पोत छीन कर उचक्के फरार हो गए थे। अभी ये मामला ताज़ा ही था कि इसी इलाके के एक रिहायशी मकान में दाखिल होकर नामालूम चोर 8 ग्राम सोने की पोत और 3000 रुपये नकद रकम चुरा कर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक हनुमान नगर की साकिन आशाबाई शंकर हारनूर अपनी बेटी दीपाली के साथ अपने रिहायशी मकान में सो रही थीं। उन्होंने मकान का बैरूनी दरवाज़ा लॉक किया और अंदरूनी दरवाजे खुले रखे ताकि ताज़ा हवा घर में आती रहे, जिसका फ़ायदा उठाकर नामालूम चोर उनके मकान में दाखिल हुए और उनके तकिए के नीचे रखी 8 ग्राम सोने की पोत और घर में रखे 30,000 रुपये नकद चुरा कर फरार हो गए। उनके भागने की आवाज़ पर दोनों माँ बेटी नींद से बेदार हो गए और फौरी तौर पर इस वारदात की इत्तला पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन को दी। इत्तला पाते ही असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर घनश्याम सोनो ने अपने अमले के साथ मौके वारदात पर पहुंचे और तफ्तीश का आगाज किया। मजीद तहकीकात हवलदार SB हिंगे कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कोरोना की तीसरी मुमकिन लहर से बच्चों को महफूज रखने हुकूमत और इंतजामिया चौकस। बाल संगोपन स्कीम से मुस्तफीद करने के लिए हर दवाखाने में नुमाया मकाम पर लगाए जाएं चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बोर्ड। जिला कलेक्टर की हिदायत। खाद की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शेतकरी कामगार पक्ष ने तहसील ऑफिस केज के सामने खाद की बोरियां नजर आतिश करके दर्ज करवाया अपना एहतजाज। तहसील इंतजामिया की मारिफत, हुकूमत को मेमोरेंडम पेश। रुकने पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील और MLA प्रदीप जायसवाल की रहनुमाई में सिटी चौक और शहर के मुख्तलिफ मकामात के ताजिरों ने की जिला कलेक्टर से मुलाकात और माह रमजान में दुकानों को लगाई गई सील खोलने की अपील। और जिला बीड़ पुलिस ने शुरू की शराब का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम। 9 हाथ भट्टियों पर मारे छापे और ज़ाय किया 94,500 रुपये मालियत की शराब और साजो सामान। लातूर क्राइम ब्रांच पुलिस ने भी जब्त की 12,78,000 रुपये मालियत की गैर कानूनी शराब। केस दर्ज, तहकीकात जारी। नाजरीन, इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। ज़की सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।